A very welcome, Abhishek, to you in Thank today's Toppers Talk. thank And you. so, before starting, I just want to tell every one of you that Abhishek is already selected in IRS, Indian Revenue Service, and currently he's posted in Custom and Excise, and currently he's handling some department in GST. So, and he got selected this year as well. And Abhishek, I have framed certain questions for you, and I'll ask few questions. They are very common questions which are mostly asked. Conversation आप Sure. bilingual रख सकते हैं, in English हिंदी आप दोनों में जवाब दे सकते हैं. Okay, students will be mixed. They are from Hindi and English background both. Okay, Okay. so Abhishek, just tell me, tell something about yourself, how this journey started. Okay. I have done my MBBS from AIMS New Delhi, and during my internship days, I decided that I wanted to appear for the civil services examination. I had some of my seniors who got very good ranks in the civil services exam, so I kind of got inspired by them also. And I gave my attempts in 2015. I got selected on the exam, and I was allotted, like you told, that I got allotted the Indian Revenue Service in the Customs and GST. And after that, I took EOL and gave the exam again, and every time I have been able to reach the interview stage. So 4 times I have reached interview, and twice I have got the name in the final list, and this Okay, time okay, 627 rank. Yeah. okay. So let me. I'll just put it again. Same thing. So Abhishek is already a doctor, and being a doctor in profession, and because of the background he got, a lot of his seniors were in services. So automatically he, the urge was there, and he prepared for the examination. So this is the second time he got selected. This is not the first time. He is the second time he got selected. And Abhishek, do you have any attempts left still? Have you attempt बचे हैं कुछ? Yes, I have attempts left, and I have filled the form Okay, this year also. But with job, it's a okay, little okay. to manage, but I'll try my best. Difficult. हाँ. But no, I think there's nothing. कोई वैसा ज़्यादा difference नहीं होता है. Uh, you can crack prelims. Mains is something that basics already there. You maybe just little bit putting things coming here and there, and you might get selected and maybe get better rank as well. Okay. So now the first question I would ask is that the people who start preparation, जो लोग तैयारी start करते हैं, so if you have to give certain advice that what should they have in their mind when they start preparation, तो आपका क्या कुछ few important advice that you want to give? For this मेरी ये होगी कि सबसे थोड़ा कॉन्फिडेंस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आई लोगों ने लोगों के मन में रहता है कि एग्जाम बहुत मुश्किल है, क्रैक नहीं हो सकता, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक होता। तो पहला तो ये है कि एटीट्यूड है वो ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम इज इजी, आई विल क्रैक इट, तो वो सबसे पॉइंट है। दूसरा ये है कि बिफोर स्टार्टिंग आई वुड सजेस्ट कि आप प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स हैं ना, जिन्होंने अच्छे हासिल किए हैं, उनके आप इंटरव्यू जरूर देखो। और जो एटलीस्ट जीएस के लिए तो आप शुरू से ही देख सकते हैं कि वो क्या थी, उससे आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। बिकॉज इस एग्जाम की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये तो समझ आ जाता है कि पढ़ना क्या है, पर ये नहीं समझ आता भी क्या नहीं पढ़ना है, बिकॉज इसमें स्कोप इतना वास्ट है इस एग्जाम का। तो कई बार स्टूडेंट्स जब बिल्कुल एकदम, जो मैंने भी प्रॉब्लम शुरू में फेस की थी, वो ये थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या पढ़ूं। तो इसलिए अगर स्टूडेंट्स देख ले तो फायदेमंद रहेगा। और Okay, दूसरा okay, ये कि बस प्रिंट आउट लेकर उसको शुरू से इंटरनलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज इफ वन डज नॉट नो कि एग्जाम में आना क्या है, पूछा क्या जाएगा, तो फिर उस लगेगा। तो दो चीज़ें जो मेरे हिसाब से हैं, वन इज सिलेबस एंड अदर इज प्रीवियस ये टॉपर, इन दोनों का जरूर शुरू में देखना चाहिए। okay, okay. So I'll just summarize quickly. Students, what Abhishek mentioned that you need to understand the syllabus very properly if you want to crack the examination. Because understanding of syllabus will give you an idea that क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. You can draw a line, and yes, lot of things eventually आपको पढ़ाई के साथ समझ में आएगा. अगर आपको अभी मैं समझाऊं या आप अगर अभिषेक समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, but eventually in the course of preparation you'll understand. And he also advised that students should also fortunately YouTube पे बहुत सारे options available है, videos available है. So you should also look at what toppers tell. They can share their experiences. In fact, almost हर टॉपर का आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ इनपुट या कोई वीडियो मिल जाएगा, and you can make a take some very wise advice and inputs that are given by them. Okay, so that is his two advice that Abhishek gave. Abhishek, uh,
students have a lot of fear for sub areas in mains examination because तो आप क्या मेंस का आंसर राइटिंग के बारे में या फिर हाउ शुड स्टूडेंट प्रिपेयर, व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रीलिम्स एंड मेंस एंड हाउ स्टूडेंट शुड अप्रोच बोथ द लेवल्स? सी प्रीलिम और मेंस में काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट भी हैं और काफ़ी एरिया कॉमन भी है। और क्योंकि मैं कहूँगा पहला स्टेप होना चाहिए कि पहले प्रीलिम्स के हिसाब से तैयारी एक, क्योंकि प्रीलिम्स इज लाइक अ टिकट। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा तो आप मेंस में बैठ ही नहीं सकते। और प्रीलिम्स में कंपटीशन भी बहुत टफ है बिकॉज लाइक मोर देन 4 लाख पीपल गिव द एग्जाम और 10,000 और स्टूडेंट्स जो हैं वो मेंस में बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स के हिसाब से मेरे हिसाब से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। और उसमें सबसे बेसिक्स लाइक बुक्स लाइक हो गई या इकोनॉमी की बुक्स हैं जो बिल्कुल बेसिक बुक्स हैं उनसे स्टार्ट करिए आप। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया हो गई, तो आप थोड़ा थोड़ा मतलब जस्ट लाइक अ लाइट विदाउट एनी मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लिए वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आप प्रीलिम्स पर ही चले जाएं और मेंस का भी वो करें, थोड़ा सा इंटीग्रेटेड रखें। मेंस के सिलेबस को भी जीएस के सिलेबस को नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है साथ में। लाइक फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री है तो वो ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ की मेंस में आता है पर वो प्रीलिम में नहीं है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री ये जो की बुक जनरली जो होती है वो ओरिएंट ब्लैक स्वान वाली वो वाली बुक जो है वो करनी होती है। तो थोड़ा थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री भी साथ साथ करते रहिए। बट पहला फोकस प्रीलिम पर जरूर रखें क्योंकि जो बेस बनाएगा वो प्रीलिम्स ही बनाएगा एंड प्रीलिम्स इज लाइक द फाउंडेशन पार्ट जो वो प्रीलिम्स है। मेंस फिर आप साथ साथ में सिलेबस कवर जब लेट्स से कि आपकी तैयारी एक हो गई है, यू हैव पुट इन लेट्स से 6 मंथ्स, आफ्टर अराउंड 6 मंथ्स ऑफ बेसिक स्टडीज यू आंसर राइटिंग। पर पहले एक फाउंडेशन जरूरी है जिसमें मैं न्यूज़पेपर रीडिंग भी जरूर कहूंगा। शुरू के 6 मंथ्स में आप टाइम भी ज्यादा दो तो उसमें साथ साथ बेसिक बुक में एनसीईआरटीज खत्म करो। 6 मंथ्स का ये टारगेट होना चाहिए। वंस दैट इज ओवर उसके बाद आप जो है जा सकते हैं आंसर राइटिंग पर। बिकॉज बहुत जल्दी भी कई बार अगर आंसर राइटिंग में कहूँगा अभी आपने कुछ सिलेबस याद नहीं किया, अगर आपने डे 1 से आंसर राइटिंग शुरू की तो बहुत अजीब हो जाएगा बिकॉज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि लिखना क्या है। सो एक बार फाउंडेशन बन गया 6 मंथ्स का उसके बाद आंसर राइटिंग रेगुलर लेट्स से डेली चाहे आप 2-3 आंसर ही लिखें, जरूर लिखना शुरू कर दें उसके बाद and go on with preparation. Okay. So what Abhishek mentioned that first you should develop your basics and fundamentals through NCERTs और आप बेसिक सब्जेक्ट्स की जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे, once your content is enriched, then you can go to the next level and you can start writing answers because answer writing will also is important mains examination. Now since prelims is the entry or hall ticket, आपको अगर mains का चाहिए होगा तो आपको prelims निकालना ही होगा. So naturally focus should be on prelims. At the same time also understand that UPSC का syllabus almost 70% prelims and mains same होता है. And hence when you prepare for any topic, if you are approaching an objective question, that is prelims. But once you are able to go and analyze karte ho, if you have to maybe give a nuanced understanding of any topic and issue, so that would require a good communication through answer writing skills. So that is what he mentioned in a very brief way. And one more thing, students के साथ एक बहुत common query एक रहता है that optional कैसे choose करें? So how did you choose optional? Because you from medical background, आपके पास medical science भी था, but you chose an anthropology as an optional. So how did you choose an optional? एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी में ये एडवांटेज रहता है कि खासकर मेडिकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये होता है कि देयर इज सम सर्टेन पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस व्हिच इज कॉमन विद आवर मेडिकल, लाइक फॉर एग्जांपल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, देन जेनेटिक्स पार्ट इज देयर, that all we have done in like 11th 12th standard also and during even the first years of MBBS also. So थोड़ा सा ग्रास्प करना आसान रहता है। इवन दो अब तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी आ रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स आई थिंक कैन बी वेरी गुड ऑप्शनल। और मेरा मेन रीजन ये था कि मेडिकल का सिलेबस इज वेरी वास्ट, इट्स लाइक 19 सब्जेक्ट्स दैट हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड व्हाट आई फेल्ट इज मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे तो क्वेश्चंस आर इवन लेवल अबव MBBS, सो दे आर लाइक PG लेवल क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड समटाइम्स इवन आउट ऑफ सिलेबस, दे वर नॉट स्टिकिंग टू द सिलेबस आल्सो। और अगर आपको मेडिकल की प्रिपरेशन करनी है यू हैव टू गिव एक्सक्लूसिव 6 to 8 months टू मेडिकल ओनली, देयर इज नो ओवरलैप विद GS। एंथ्रो का ये एडवांटेज है लाइक पेपर 2 सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, ऑल दिस टॉपिक्स हैव अ सर्टेन ओवरलैप विद द GS आंसर्स एज वेल। लाइक अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो इवन प्रीलिम्स में भी दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो एंथ्रो के क्वेश्चन थे, लाइक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का क्वेश्चन था एंड ऐसे। सो इसलिए वो है एंड एंथ्रो सिलेबस इज कंसाइज विदाउट अ डाउट, इट कैन बी फिनिश्ड वंस विद इन 3 to 4 months। ऑब्वियसली अच्छे से करने के लिए मल्टीपल रिविजन्स की जरूरत रहती है तो यू नीड मोर टाइम,
बट आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई मेडिकल बैकग्राउंड के हैं दे कैन गो फॉर एंथ्रो ऑप्शनल एज वेल, एंड इवन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर दैट. इफ यू टेल कि एग्जैक्टली ऑप्शन चूज करने के लिए क्या पॉइंटर्स दिमाग में होने चाहिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो दिख रहे हैं दे आर वेरी बिगिनर्स, दे आर माई क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं ये सारे ऑनलाइन के, सो दे आर वेरी बिगिनर्स. तो अगर उनको ऑप्शनल चूज करना होना चाहिए तो व्हाट शुड बी द अप्रोच दैट दे शुड बी स्टार्टिंग? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शुड बी कि ऑप्शनल में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. सो लेट्स से इफ यू आर हैविंग अ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेट्स से सिविल इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल, जो भी ऑप्शनल का आपका हो सब्जेक्ट है, इवन फॉर मेडिकल, अगर आपका उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शुरू से है देन यू टेक दैट ऑप्शनल. बट इफ़ यू फील कि आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसमें आपका इतना नहीं इंटरेस्ट डेवलप हुआ और यू आर नॉट दैट गुड स्टूडेंट ड्यूरिंग कॉलेज डेज, विच इज़ टोटली नॉर्मल का बहुत स्टूडेंट्स का होता है, देन यू कैन सी फॉर अदर ऑप्शनल. और उसमें भी आप ऐसा करो कि ऑप्शनल का सिलेबस सबसे पहले जरूर देख लो. और अगेन मैं कहूंगा सिलेबस एंड टॉपर्स टॉप, उस पर्टिकुलर ऑप्शनल से जिस टॉपर ने मतलब है उसका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा. उसका ऑप्शनल स्पेसिफिक जो पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं कि हाउ दे प्रिपेयर्ड ऑप्शनल और क्या क्या पॉइंट है, तो एक बार वो वीडियो से गो थ्रू जरूर करिए. बिकॉज बिफोर मेकिंग अप योर माइंड आपको सभी ऑप्शनल का, लेट्स से यू शॉर्टलिस्ट बिटवीन सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप तीनों के, बट यू आर नॉट राइट नाउ श्योर कि मुझे कौन सा ऑप्शनल लेना है, तो आप तीनों के एक बार सिलेबस को डिटेल में गो थ्रू करिए और टॉपर के वीडियोस देखिए कि उसमें कैसे तैयारी का कितना टाइम लगता है वो. बट अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फिर ये देखना कि आपका इंटरेस्ट किस में सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है, और जिसमें, बिकॉज ऑप्शनल इज वन थिंग जिसमें आपको थोड़ा सा एक लेवल जिसको कहते हैं कि डीपर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. बिकॉज जीएस में यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू टू हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, बट ऑप्शनल में यू हैव टू बी स्लाइटली एट एन एक्सपर्ट लेवल का आपको स्टेप जाना पड़ेगा. सो अनलेस अंटिल यू हैव डीप इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर ऑप्शनल तो ना ले. और एक बात और थी जो इसमें कि बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये स्कोरिंग ऑप्शनल है तो मैं ले लेता हूँ, या जी ये पॉपुलर चल रहा ऑप्शनल तो है, तो ऐसा गलती मत करें, क्योंकि स्कोरिंग हो सकता है लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं उसमें डेवलप हुआ तो वन वुड नॉट बी एबल टू स्कोर इन दैट. सो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया इज दैट यू शुड, कि आपको अगर दिन में 6 घंटे 8 घंटे वो ऑप्शनल भी पढ़ना पड़े तो आपका इतना इंटरेस्ट हो कि यू एंजॉय रीडिंग दैट सब्जेक्ट. सो मेरा क्राइटेरिया तो यही रहेगा भी इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए. स्कोरिंग जो है अगर आपका इंटरेस्ट आ गया तो स्कोरिंग अपने आप हो जाएगा. Okay, okay. So I'll just quickly summarize what Abhishek mentioned, that if you want to choose an optional, there are certain basic criteria. The first is interest in the subject. आप पहले interest आपका क्या है आपको वो identify करना होगा. Many times it is very difficult also to be interest कहाँ है, तो वहाँ पे आप basic reading कर सकते हैं, or you can go and look for maybe topper's talk. You can also decide optional based on कि भाई मेरा ये background है तो मुझे कौन सा option suit करता है. But interest should be the primary thing. बिकॉज इट इज अ वन वे जर्नी. आपने गलत ऑप्शन चूज किया तो इट विल बी सुसाइडल, फिर आप वापस नहीं आ सकते हो. एंड अनदर थिंग ही मेंशन इज दैट while deciding optional, don't go for कि भी ये पॉपुलर ऑप्शन है तो मुझे यहाँ करना है. yes, many times किसी सब्जेक्ट में नंबर आते हैं, but your interest will finally decide. In fact, what I, Abhishek, feel that I've seen students, this is my 11th year of mentoring students, and I've seen students irrespective कि वो वहां पर ट्रेंड नंबर चल नहीं रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है, बट फिर भी बहुत अच्छे नंबर वो लेके आते हैं. इट हार्डली मैटर्स, इट इज वेरी इंडिविजुअल. इफ यू ब्रिंग नॉवेल्टी इन द ऑप्शनल, इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट द अंडरस्टैंडिंग, तो आप अच्छा किसी भी ऑप्शन में कर सकते हैं. सो दैट इज द अनदर एरिया. नाउ लास्ट जो इंटरव्यू का जो एरिया है वो थोड़ा पूछना चाहूंगा मैं, अभिषेक, आपका इंटरव्यू का पैनल कौन सा था, एंड कैन यू जस्ट गिव सम आइडिया अबाउट एक्सपीरियंस, अपना शेयर करिए इंटरव्यू का. तो इंटरव्यू पे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी वास्ट है. मैं चार बार इंटरव्यू दी हुई है अभी. तो मेरा इस पर पैनल थे भारत भूषण व्यास सर थे मेरे पैनल चेयरमैन, और इंटरव्यू उनका काफ़ी कॉर्डियल था. उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रेस इंटरव्यू जैसा ऐसा कुछ नहीं था. बट एक लास्ट टू लास्ट ईयर जब इंटरव्यू था उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस इंटरव्यू हो गया था. सो इंटरव्यू में मैं जनरली कहूँगा कि उसके लिए आप एक दो चीज़ें जो मुझे लगता है कि मुझे और करनी चाहिए थी और मैंने नहीं की, तो इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि एटलीस्ट एक या दो हॉबीज वो शुरू से ही अपनी प्रिपरेशन की जर्नी के शुरू से ही पकड़ लीजिए, जो कि डिसाइड समथिंग अ लिटिल यूनिक, मतलब जो कॉमन ना हो कि क्रिकेट खेलना, ये सब हॉबीज में सब लिखते हैं, दीज आर वेरी कॉमन. मे बी यू कैन गो फॉर लाइक फॉर एग्जांपल अगर बॉयज के लिए मैं कहूँ तो जनरली कुकिंग जैसे ऐसी हॉबी है जो कि अप्रिशिएट की जाती है इफ गाइज नो इट. सो इसलिए वैसी हॉबी आप डेवलप कर लो. कुछ लिटिल डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी है तो कुछ साइकिलिंग जैसे टाइप डेवलप कर लीजिए, कुछ समथिंग डिफरेंट देन द नॉर्मल वो.
तो वो बहुत काम आता है, बिकॉज हॉबी और इंटरव्यूज मोस्टली डैफ बेस्ड, लाइक आई हैव सीन वेरी फ्यू इंटरव्यूज जो डैफ से अलग जाता है, मे बी कभी कभार हो सकता है अगर वो स्ट्रेस इंटरव्यू बनाना चाहें तो कर दें, बट एटलीस्ट मेरे सभी इंटरव्यूज में इट वाज ऑलवेज डैफ बेस्ड। सो आप डैफ को एकदम डिटेल्ड डैफ को सामने रखिए और एक एक वर्ड को सर्कल करके उसका, मैं जैसे मैंने नोट्स बनाए थे तो मैं लाइक आई एम फ्रॉम जलंधर, तो मैंने जलंधर को एक हेडिंग डालकर आई मेड लाइक 30-40 पेजेस ऑन जलंधर, कि क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, फेमस पीपल कौन है यहाँ से, नाम कैसे आया इसका, और ये है। इसी तरीके से आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इफ़ यू आर एन इंजीनियर तो आप उसके अपने कॉलेज का नाम है, कॉलेज की हिस्ट्री क्या है, जहाँ जहाँ पर भी आप पढ़े हो वो सिटीज़, तो इस तरीके से वो तो बना ही लीजिए। और प्लस हॉबीज़ जो है वो ट्राई टू कल्टिवेट 1 to 2 हॉबीज़, ताकि आप वो वाकई जब लिखें तो यू नो इन डेप्थ, बिकॉज आप जब 1 साल की जर्नी में उस हॉबी को रेगुलरली परस्यू करेंगे तो वो आपको तब तक इन डेप्थ हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। So that is one thing that should be done in interview. Okay, so what Abhishek mentioned is that his interviews, he had given 4 interviews, so quite wide experience. Abhishek, I have also given 3 interviews during my time. Okay, so I understand the trauma of interview, and I had good ones and bad ones as well. The bad one, itna bad ho gaya ki I could not get the service. That was the best year of my mains, but that is okay. It happens with a lot of people. Happens. So, so, uh, uh, so few things that Abhishek mentioned is that he had a decent experience in the the boards were cordial except one interview which was stress, and the questions that were asked mainly from DAF. अच्छा DAF क्या है बच्चों को बता दूं, DAF एक फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, एंड दैट इज अ फॉर्म आप जब इंटरव्यू देने जाते हो उससे पहले मेंस के बाद उस फॉर्म मेंस से के अराउंड उस फॉर्म को आप भरते हो, एंड दैट फॉर्म इज इन फ्रंट ऑफ द पैनल इंटरव्यू। तो पैनल मेंबर्स के पास वो फॉर्म होता है, एंड दैट कंटेन्स योर entire background, your educational background, your family background, your anything, hobbies and all. So आप उसको अच्छे से तैयार करोगे तो the chances are there. In fact, I personally feel that almost 60-70% जो क्वेश्चन आपके डैप से ही आते हैं, एंड ऑफ कोर्स द करंट पार्ट जो आप तैयार कर रहे हैं वहां से रहेगा। DAF also includes your background. For example, Abhishek is from medical background, so automatically they can expect, he can expect और कि इनको medical background से क्वेश्चन मिलेंगे. So that is the whole aspect of interview. Now Abhishek, मैं कुछ I would ask students to tell कुछ questions पूछेंगे ये लोग, and then I'll take those questions. But so students, you can ask your questions, but before आप क्वेश्चन जब तक लिखोगे तब तक मैं एक दो चीज अभिषेक से और भी एक आध चीजें पूछ लूंगा। अभिषेक, अगर आपको ये बताना हो, इफ यू हैव टू समराइज हाउ द जर्नी हैज बीन, अगर आपको 2-3 लाइन में अगर आपको, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मे बी phrase the whole journey, but how the journey has been? The journey has been very long and it has been with a lot of ups and downs, because जब तक आप तैयारी करते हो there will be days when you feel very productive, जब आप 8 घंटे 10 घंटे बढ़िया पढ़ाई हो जाती है तो बड़ा अच्छा भी लगता है, और कोई कोई दिन ऐसा होता है कि बुक खोलने का भी मन नहीं करता। सो अप्स एंड डाउन्स है, बट लाइक मैं एक चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जैसे आपने बताया सर कि ये सभी बिगिनर्स हैं एकदम, तो दे हैव लाइक, मैं इनको ये एक एडवाइस भी देना चाहूँगा, और इनके पास एक बहुत बड़ा नाम भी IAS एज है आपके इंस्टीट्यूट का, तो दे हैव अ वेरी बिग एज हेयर, और वो ये है कि दे आर वेरी मच फ्रेश इनटू देयर प्रिपरेशन। और ये जो एडवांटेज है इनके पास कि अभी टाइम है इनके पास, मैं वो कहूँगा कि ये बिल्कुल वेस्ट ना करें। गो विद द, स्पेशली अगर किसी की फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, गो विद द माइंडसेट कि इसी साल में पेपर निकालना है, और बस मतलब लग जाए, मतलब ना कुछ मतलब कोई कमी ना रहे एफर्ट में, और इतना हार्ड वर्क डाल दें कि उनको दोबारा से, क्योंकि एग्जाम मांगता है, इसमें इंटेलिजेंस का रोल आई वुड से इज वेरी लेस, एंड अगर हार्ड वर्क किसी ने पुट किया है तो वो डेफिनेटली अच्छा रैंक लेगा ही लेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे। तो इसलिए अभी से ही दे शुड नॉट वेस्ट एनी टाइम, और 1 साल का टाइम पीरियड लेके चलें। 1 year इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस एग्जाम। आई मे टेल यू, लोग कहते हैं 2 साल चाहिए, 3 साल, बट 1 to 1.5 year मैक्स यू कैन से। तो अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज पुट योर बेस्ट एफर्ट, डू नॉट वेस्ट। आप इस साइकिल में मत पड़िए कि 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में, या किसी दूसरे को देख के उसका 4th अटेम्प्ट में हुआ, 5th अटेम्प्ट में। यू हैव दैट माइंडसेट कि मैं पहली अटेम्प्ट में निकाल दूंगा, और बड़ी आसानी से निकल सकता है ये एग्जाम। और क्योंकि अगर एक बार ये जर्नी लंबी हो जाए ना, तो फिर देयर इज मोर चांसेस ऑफ थिंग्स लाइक दिस ईयर कोविड एंड ऑल हैपेंड, एंड एवरीवन हैज सीन कैसे रिजल्ट भी डिले हो गया, नाउ मार्क्स भी नहीं आ रहे यूपीएससी की तरफ से, इंटरव्यूज गॉट पोस्टपोन, सो यू नेवर नो किस तरह की चीजें आगे आगे हों। सो मेक योर फर्स्ट अटेम्प्ट योर बेस्ट अटेम्प्ट, पूरा जी जान लगा दें,
और दिस एग्जाम विल इट इज वर्थ इट, मतलब आपकी मेहनत जो है वो आपको रियलाइज होगा कि इट इज वर्थ इट. सो पुट योर बेस्ट एफर्ट, दैट इज माय मेजर एडवाइस. So I just summarize what Abhishek mentioned. So Abhishek mentioned the first attempt should be your best attempt. So give your best, put all your hard work. This exam is a journalist examination, and I personally, मेरा जो experience है Abhishek, the examination is a great leveler, where people from all background get selected, and it is not that somebody who is talented or who has a good previous degree will have advantage. ऐसा नहीं है. Everybody is at the same level. The only differentiator is that how well you are able to put things in place as per the requirement of the examination in this journey. आप इस journey को कितना अच्छे से कर पाते हो. So and there, I have seen this year itself, या पिछले कई साल से मैं देख रहा हूँ, lot of young people they get selected early because they start early, they get right inputs, and it is very easy to crack the examination in 10, 12 months, 1 year, 15 months. It varies from people to people, but 12 से 15 महीने sufficient है इस exam को निकालने के लिए. It's just that you need to have your basics in place, the efforts and strategy in place, or make sure that you finish the journey in one go. एक बार में इसको खत्म करना है, because ये जो journey बार-बार में painful हो जाती है. If you have to repeat the same topic again, if you have to revise the same notes again, if you have to do the same thing all over again, it is a very painful process. So let's make the best effort. That is the best thing you can do, because that will decide the outcome of the preparation. कुछ क्वेश्चंस आए हैं अभिषेक, I'll put them across. पहला है, there is a student called Debashish. He is asking, we have 9 months because अगला जो attempt आने वाला है जून में, वो 9 months है. Already ये लोग पढ़ रहे हैं, and तो ऑप्शनल की तैयारी में कितना टाइम लगना चाहिए ना, क्वाइट सब्जेक्टिव बट स्टिल व्हाट इज योर व्यू, ऑप्शनल की तैयारी में मिनिमम कितने टाइम देना चाहिए? He totally depends on. He is an engineer. I'll tell you what he is. Okay. If you can tell also his optional also, like what is his optional? Optional, I think geography. Debashish, आप geography optional plan कर रहे हैं, I believe. Okay. So geography, हाँ. There's one more student, Tuba. She's also asking about the same optional. I don't know, आपको geography optional के बारे में बता पाओगे नहीं, but still. Obviously, yeah, optional के मैं तैयारी का तो geography का नहीं बता सकता, मैं एंथ्रो का ही बता पाऊंगा. लेकिन like geography में again I say कि इसमें एक advantage ये है कि this is an optional जो GS में भी अच्छे से use हो सकता है. Whoever has done geography optional, उसके GS1 में you can expect geography के at least 6 to 7 odd questions, और 15 marks में भी 10 marks में भी, so you have very good advantage there. So कुछ ना कुछ वो overlap का आप फायदा उठा सकते हो. बाकी I would say every optional in general would require at least, in my view, at least around 4 months. जो मैं कहूँगा at least 4 months of more or less dedicated time, exclusive time to that optional. You can save up to 4 to 6 months तक भी जा सकता है, but 4 months तो आपको exclusive optional के हैं. बट तैयारी करते टाइम आई वोंट सजेस्ट कि आप सिर्फ ऑप्शनल पकड़ लें और 4 महीने ऑप्शनल ही पढ़ते रहें, ऐसा बिल्कुल ना करें. तैयारी करते टाइम यू शुड कीप, जो मेरा व्यू रहेगा, यू शुड कीप 2 थिंग्स टुगेदर, बिकॉज उससे क्या होता है आपकी तैयारी में एक ना मोनोटनी जो आ जाती है, एक बोरियत आ जाती है, जो वो भी टूट जाती है. सो लाइक यू कीप ऑप्शनल एंड 1 सब्जेक्ट. सो एवरी डे कीप 2 थिंग्स. डोंट मैश अप 2 थिंग्स कि आज मैं पॉलिटी भी पढ़ूंगा 1 घंटा, इकोनॉमी भी पढ़ लूंगा 2 घंटा, फिर मैं ऑप्शनल के भी 2 घंटे लगा लूंगा. इससे बहुत मिक्सअप हो जाएगा. मेक 2 थिंग्स की, और ऑप्शनल डेली पढ़ना जरूर है. लेट्स से 3 to 4 आवर्स ऑप्शनल को मैंने देने हैं, और बाकी 3 to 4 आवर्स में व्हाटएवर सब्जेक्ट यू आर डूइंग दैट, ना पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ें, बट कीप ऑप्शनल एवरी डे अलॉन्ग विद जीएस. तो दोनों को पैरेलली चलाते रहें. तो ओवरऑल आप देखोगे कि अगेन 8 to 9 मंथ्स में जो है आपका ऑप्शनल की तैयारी अलॉन्ग विद बेसिक्स ऑफ वो हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन बिल्ड अप ऑन दैट प्रिपरेशन इन द कमिंग 5 to 6 months. Okay. So he said that 4 to 6 months is needed. आप 4 महीने डेडिकेट अगर करेंगे तो ऑप्शन रेडी हो जाएगा. एक टूबा स्टूडेंट है, इनका ज्योग्राफी का जीएस का क्वेश्चन है. इनका कहना है कि ज्योग्राफी कैसे तैयार, बिकॉज शी हैज अ फियर ऑफ ज्योग्राफी. सो व्हाट इज द स्ट्रेटजी फॉर ज्योग्राफी? सी जीएस की ज्योग्राफी जो होती है, देयर आर वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. मैंने देखा लाइक ओशन करंट्स पे क्वेश्चन आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, सो वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस एंड दे गेट रिपीटेड आल्सो. सो जितने भी स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं उनको बिल्कुल भी मिस मत करना. आपकी बेसिक बुक्स एनसीईआरटी की 11th और 12th जो है, दैट शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, और डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. तो ज्योग्राफी में एक आई वुड सजेस्ट कि हर स्टूडेंट को फॉर ऑल जीएस पेपर्स कीप 1 सेपरेट रजिस्टर, और उसके रजिस्टर का नाम रख लीजिए डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स रजिस्टर, और उसमें देखकर बढ़िया अच्छी साफ सुथरी, उसमें विद अ पेन ओनली, विद अ ब्लैक पेन यू स्टार्ट ड्राइंग डायग्राम्स जो कि आप अपने पेपर में भी बना सकें. लाइक अगर ओशन करंट्स पे डायग्राम है, यू शुड बी एबल टू मेक अ मैप ऑफ द वर्ल्ड
और ओशन करंट्स जो आप सारे शो कर सकें। सिमिलरली साइक्लोन्स पे है तो साइक्लोन का बेसिक डायग्राम आपको पता होना चाहिए। सो अगर डायग्राम्स की प्रैक्टिस होगी ज़्यादा से ज़्यादा, विच इंक्लूड्स मैप्स ऑल्सो, मैप्स पूरे इंडिया के मैप पे कोल की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, आयरन ओर की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, तो ये छोटे छोटे मैप्स अपने डायग्राम्स रजिस्टर में बना लो और उसको फिर एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवाइज कर लो, ताकि आपको बुक खोलने की जरूरत ना पड़े मैप्स के लिए। यू हैव ऑल द मैप्स एंड डायग्राम्स एट वन प्लेस। एंड यू कैन डू दिस इवन इन हिस्ट्री, लाइक इन हिस्ट्री ऑल्सो यू हैव लॉट ऑफ अपने मॉडर्न हिस्ट्री के जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो यू कैन मेक डायग्राम देयर ऑल्सो। सो ट्राई टू इनकलकेट शॉर्ट बट लाइक लेजिबल डायग्राम्स जो कि दिख सके, तो बहुत फैंसी नहीं चाहिए, बट इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, दे विल डेफिनेटली बूस्ट योर मार्क्स। Okay, okay. ठीक है. So well put. No, so he geography में Tuba, what he mentioned that 11 12 NCERT is very good for starting the basics, and you practice well with the diagram, and जो भी current में news आता है उसका आपको location उसको practice करना, या फिर जो standard physical geography से question आते हैं class 11 की जो किताब है fundamentals of physical geography, वहां से आप कोई भी topic पढ़ रहे हो तो उसका एक diagram flow understanding, एंड यू कैन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सम प्रैक्टिस क्वेश्चन से काफी कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा मेरे हिसाब से। लेटर ऑन आप जीसी लॉन्ग देख सकते हो, एंड मैप्स हरो जो है मैप्स का प्रैक्टिस करोगे, सो दैट विल बी एबल टू ओवरकम मोस्ट ऑफ द फियर। देयर इज अ स्टूडेंट कॉल्ड बिनीश, व्हेन शुड आई स्टार्ट स्टडीइंग ऑप्शनल? आई थिंक टाइम तो हो गया है ऑप्शनल का, नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम देने वाले हैं। सो व्हाट इज योर एडवाइस? या ऑप्शनल आपको डे वन से, जब से आप प्रिपरेशन शुरू करें, यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड, लाइक वंस यू हैव डिसाइडेड कि मैंने ये ऑप्शनल करना है तो आपको उसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, बिकॉज लाइक आई सेड ऑप्शनल में यू हैव टू गो अ लिटिल डीपर। और इसलिए शुरू से ही फ्रॉम डे वन व्हेन यू वंस यू हैव डिसाइडेड, पहले आप थोड़ा टाइम ले सकते हो कि मैंने कौन सा ऑप्शनल डिसाइड करना है, गो थ्रू एवरीथिंग जो हमने पहले भी बात की, बट एक बार डिसाइड कर लिया तो जीएस के साथ साथ आपको डेली ऑप्शनल पढ़ना ही पढ़ना है। और स्पेशली मैं कहूँगा पहले पढ़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज प्रीलिम्स से पहले के 2 मंथ्स, जब भी प्रीलिम्स हो रहा है उससे पहले के 2 मंथ्स यू हैव टू गिव एक्सक्लूसिवली टू प्रीलिम्स। उस टाइम में आपको प्रॉपर एमसीक्यू मोड में और ऑब्जेक्टिव मोड में चले जाना है, बजाय कि मेंस की प्रिपरेशन को आपको बैक सीट पे करना है। तो इसलिए आपको ऑप्शनल एक बार एटलीस्ट वंस इट शुड बी प्रिपेयर्ड 2 मंथ्स बिफोर द प्रीलिम्स, क्योंकि 2 मंथ्स आप प्रीलिम्स में दोगे एंड देन यू कैन अगेन स्टार्ट विद योर ऑप्शनल एज सुन एज प्रीलिम्स एग्जाम इज डन। सो इसलिए ऑप्शनल ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम डे वन इटसेल्फ, ताकि आप उसे खत्म कर सको एक बार। Okay, okay. So that is the optional. Moment that the optional is decided, you should start studying optional, because एक optional में आपको थोड़ा सा you have to go up to post graduate level, तो in depth understanding होना चाहिए Binish. And public administration is your subject, so don't worry. Public, I can help you in the public administration. Coming to there's a question by Santosh. Which part of the history is important for UPSC? You know, Santosh, हाँ ठीक है. Question is okay, but still. See, I would say modern History history. is wide, so which part? मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन फॉर प्रीलिम्स यू कैन सी, मे बी 1-2 साल ऐसा हुआ है कि कुछ एंशियंट और मेडिवल से भी क्वेश्चन आ गए हैं प्रीलिम में, लेकिन मॉडर्न विल ऑलवेज रिमेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मेंस के हिसाब से तो और भी ज्यादा, बिकॉज मेंस में इफ यू सी द सिलेबस, एंशियंट एंड मॉडर्न इज मेडिवल इज नॉट एज सच देयर इन द सिलेबस, इट इज पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ओनली। सो जो एंशियंट मेडिवल के क्वेश्चन आएंगे वो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन होगा, जैसे गुप्ता कॉइनेज पे आ गया था क्वेश्चन, या फिर स्तूपा पे क्वेश्चन आ जाता है, तो वो बड़े एकदम कॉमन क्वेश्चन होते हैं और वो आर्ट एंड कल्चर लिंक्ड होते हैं। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में से यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक गांधी जी पे एक क्वेश्चन होगा, गांधी एंड आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन होगा, कंपैरिजन बिटवीन पर्सनालिटीज लाइक गांधी जी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिर ब्रिटिश रूल पे एक क्वेश्चन होगा। सो फर्स्ट फोकस शुड बी लाइक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुड बी, यू शुड बी वेरी थरो विद इट, एंड उसके लिए स्पेक्ट्रम की जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है वो किताब, इट्स वेरी गुड बुक, और वो आपको, यू शुड हैव गॉन थ्रू दैट बुक एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इन माय ओपिनियन, दैट बुक शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। Okay, Santosh, I hope you got your answer. So, as suggested by Abhishek, modern history is the most important area, and Spectrum is a book that you can refer properly and read it at least 3-4 times so that you get good command over the understanding of the modern history. Now, coming to the other areas, as you mentioned, art and culture, but that too in art and culture, वो ancient medieval में भी art and culture से जुड़ी हुई चीजें आती हैं. So that is the area you should get comfortable. But at basic level, at NCERT level, you should be thorough in all the areas. That is ancient, medieval, and of course art and culture as well. देबशीष का एक और सवाल था, अभिषेक, इनका कहना था, डू यू फील दैट प्रीलिम्स इज अनप्रेडिक्टेबल? वो तो पूरा यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, तो वो तो पूरी यूपीएससी कह सकते हो आप, बट
बट आई वुड से कि ऐसा नहीं है, प्रीलिम्स भी अगर आपको, प्रीलिम्स के लिए मैं स्ट्रेटजी ब्रॉड एक ही मेरी स्ट्रेटजी मैं बता सकता हूँ। आई हैव क्लियर प्रीलिम्स इन ऑल माय अटेम्प्ट्स, सो उसमें मैं इतना कह सकता हूँ कि टेस्ट पेपर्स, प्रीलिम में आप जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर करोगे, जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, उतना ही यू विल बी फेमिलियर in facing those MCQs at the exam. So try to keep a target. Like my target used to be कि I will solve at least 50 test papers. Now whether किसी भी coaching institute का लें, I won't name any one particular institute, but there are many and everyone एक उसका access है उनको, तो at least 50 test papers you should solve before entering the exam hall that day. एंड उनको आप ऐसे करें कि लाइक आई यूज टू डू कि मैं 1 से 1.25 घंटे में फटाफट मार्क कर देता था, बिकॉज 50 पेपर सॉल्व करने हैं तो मार्क कर दिए। और उसके बाद खुद ही चेक करना उसको, मैंने किसी और से नहीं, खुद ही चेक करना, मार्क्स लगा लेने अपने। बट वो मार्क्स की मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता था, मोस्टली ये था कि अब मुझे उसके जो एक्सप्लेनेशन हैं, तो एक्सप्लेनेशन को मैं ध्यान से, स्पेशली जो क्वेश्चन मेरे गलत होते थे, सो जिसमें भी गलतियां होती थी उन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन को डिटेल में एक बार पढ़ लो, और हो सके तो एक रजिस्टर, जस्ट वन रजिस्टर फॉर प्रीलिम्स, एंड आई यूज टू कॉल इट मिस्टेक्स रजिस्टर है, तो उसमें जो मेरी गलतियां होती थी मैं उनके 1 बुलेट पॉइंट्स के नोट्स बना लेता था और प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर लेता था। सो माय ओनली स्ट्रेटजी प्रीलिम्स, इफ यू सॉल्व 50 टेस्ट पेपर्स ऑफ प्रीलिम्स, ऑब्वियसली इससे पहले आपको बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, दैट इज आई वो दैट गोज विदाउट सेइंग कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ी होनी चाहिए एक बार, आपको स्पेक्ट्रम पढ़ी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की रमेश कुमार या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो वो पढ़ी होनी चाहिए, कोचिंग आप ले रहे हो कोचिंग नोट्स पढ़े होने चाहिए। उसके बाद आपके 50 टेस्ट पहले सॉल्व होने चाहिए। इफ यू हैव सॉल्व 50 टेस्ट, देन इन माय ओपिनियन आपके 120 से कम मार्क्स कभी भी नहीं आएंगे। तो इसलिए जस्ट फॉलो दैट स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स। Okay, so I'll just summarize. So he says that apart from आपने जब basics पढ़ाई अपनी कर ली है, you have to do lot of tests, test series या test practice question लगाने से आपका filtering develop होगा, आपका judgment level develop होगा, you'll be able to understand your time management, कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, and good test series with good understanding and कुछ solutions रहेंगे, आप उनको thorough analysis करो। So then अगर आप 50 papers लगाते हो, which means practically you are touching 5,000 questions. So 5,000 questions में आप 5,000 क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्यूशन, इनफैक्ट हर क्वेश्चन में 3-4 ऑप्शंस होते हैं, तो प्रैक्टिकली आप 5,000 into 4 यानी आप 20,000 ऑप्शंस चेक करते हो, आप उसको एनालाइज करते हो। सो यू गो टू दैट लेवल। सो इफ दैट इज आप उस सब कुछ डिटेल लेवल तक जाते हो, सो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई माय गैप एरियाज। व्हाट ही डिड इज दैट ही नॉट ओनली सॉल्व द क्वेश्चंस बट ही एनालाइज्ड द सॉल्यूशंस एंड आंसर्स सो वेल। अपनी एक मिस्टेक किताब बना के उसमें सारे पॉइंटर्स लिखे एंड एनालिसिस किया, and that is how he developed command in the prelims area, and he has cleared so far all the prelims. Yeah, for prelims one more So that thing, is in fact CSAT को भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि once I had a very like okay, शेप, तो कई बार लोगों को लगता है 66 नंबर ही चाहिए 200 में से CSAT में, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस एटलीस्ट 4 to 5 पेपर्स ऑफ CSAT आल्सो। जो 50 अगर GS1 के सॉल्व कर रहे हैं तो एटलीस्ट 4-5 पेपर CSAT के भी सॉल्व करें, एंड मेक श्योर कि 100 से ऊपर उसमें भी मार्क्स आए, 66 को लेकर ना चलें, 100 मार्क्स उसमें भी आने चाहिए एटलीस्ट। तो इसलिए, और वो उसकी मैं एक हिदायत दूंगा, इट इज ऑलवेज अ लेंथी पेपर। जो पेपर 2 रहेगा CSAT वाला, उसमें टाइम एकदम 2 घंटे में ही होता है पेपर, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं मैं उनको बताना चाहूंगा। so he says that take care of the CSAT as well, don't take it for granted, because I know a lot of students, my own students, वो सिलेक्शन लेवल तक इंटरव्यू तक पहुंचे हुए थे और CSAT को बहुत हल्के में ले लिया इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, और एक दिन प्रैक्टिस नहीं किया और 65 नंबर आ गए और 1 नंबर से रह गए। तो ऐसा भी मैंने एग्जांपल देखा है अभिषेक। सो you that is a big challenge, so you make sure that happens. I'll take 2-3 क्वेश्चंस हैं, I'll end में, then we'll end the session. पहला तो एक स्टूडेंट है तुबा, शी इज अ कॉमर्स स्टूडेंट, इनको फियर है साइंस सब्जेक्ट का, तो साइंस कहाँ से पढ़ना चाहिए? नाउ यू फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड तो थोड़ा मुश्किल है, बट यस, वेयर शुड आई स्टडी साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स? नो डाउट, जैसे अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, थोड़ा साइंस उनके लिए डिफिकल्ट होता है, तो मैं बताऊंगा अगर प्रीलिम्स की बात करें पहले, तो प्रीलिम्स में आप NCERTs स्पेशली फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th 10th और इवन 11th की बायोलॉजी का कुछ पार्ट, बायोलॉजी भी जो होती है, इकोलॉजी इज वेरी गुड 11th और 12th की बायोलॉजी, सो फोकस ऑन NCERTs राइट फ्रॉम, यू कैन गो अप टू 7th 8th ऑल्सो, पर वो काफ़ी बेसिक होती हैं। स्टार्ट फ्रॉम 7th 8th NCERTs एंड बायोलॉजी ऑफ 11th, जिसमें इकोलॉजी
जी 12th में 11 12th की, उस पर भी थोड़ी थोड़ी नजर मार लीजिए। तो एनसीईआरटीज आर बेसिक, उसमें डरने की बात नहीं है। और फिजिक्स आपका बेसिक है, जैसे ऑप्टिक्स का कोई क्वेश्चन है, लेंस का आ जाता है, कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तो ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटीज में वेरी वेल कवर्ड मिलेंगी। फिर बायोलॉजी में वेजिटेटिव प्रोपगेशन आ जाता है, केमिस्ट्री में बेसिक्स आते हैं, कौन से पॉल्यूटेंट हैं या क्या है, हैवी मेटल्स, ऑल दैट स्टफ। सो प्रीलिम्स के लिए अगर आप एनसीईआरटीज भी कर रहे हो थरोली, तो वो हो जाएगा कवर। मेंस में जो है साइंस एंड टेक आता है, वो जनरली आता है करंट अफेयर, उसमें बेसिक वाला कम आता है, बट करंट अफेयर, जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि एक न्यूक्लियर, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो ये जनरली अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो करंट अफेयर्स की, कोई टेस्ट सीरीज आपने यूज की है या आप वैसे भी कोई करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो, तो उसमें आपको मिल जाएगा। फिर जैसे जूनो पे आ गया था एक बार, जूनो मिशन है नासा का, जो कि जुपिटर का मिशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था। तो साइंस एंड टेक जो होती है, दैट इज मोर करंट अफेयर ओरिएंटेड। सो उसके लिए आप करंट अफेयर ओरिएंटेड जो प्लानिटरी मिशंस हो गए, फिर आपका जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया, रोबोटिक्स हो गया, वो सिलेबस में टर्म्स दी हुई हैं, बेसिक्स रोबोटिक्स, बेसिक इन आर्टिफिशियल, यू शुड बी एबल टू राइट 200 वर्ड्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया में क्या हो रहा है, इंडियाज न्यूट्रिनो है उसके बारे में पता होना चाहिए। सो वो वैसा रहेगा। प्रीलिम का थोड़ा सा बेसिक रहेगा, वो एनसीईआरटी से कवर कर लो। Okay, so what Abhishek mentioned that आप current issues पे focus करिए in the mains, prelims के लिए basic NCERTs पढ़ना चाहिए, and but वहां से भी current से काफी सवाल आते हैं, current पे thorough command होगा तो आप काफी हद तक science को overcome कर लोगे। and ये journalist exam है, they will not ask very technical question, remember Tuba, आप परेशान मत होइए, you just need to get your basics in place and things will happen। एक अंकित स्टूडेंट है हमारा, अभिषेक, ही इज हैंडीकैप्ड, okay? तो ही, इनका कहना है कि वही लिखना उखना भी इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। सो आई डोंट नो, आप, ये मुश्किल होगा बताना, बट मैं डायग्राम नहीं बना सकता, तो क्या मेरे लिए नुकसानदायक होगा, मुझे और क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है? टू डिफिकल्ट टू तो आंसर बट जहाँ तक स्टिल। मेरी नॉलेज है कि जो पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स को स्क्राइब भी प्रोवाइड होता है, आई डोंट नो वो ब्लाइंड स्टूडेंट्स को होता है या फिर इवन मोटर न्यूरॉन वालों को भी होता है। तो आई थिंक ही होता है, कैन, होता है, होता है। हाँ, तो ही कैन गेट अ स्क्राइब, तो इनको फिर वो स्क्राइब जो है इनका पेपर लिख सकते हैं, एंड ही कैन डिक्टेट टू देम, और वो लिख देते हैं। एंड दे ऑल्सो गेट एक्स्ट्रा टाइम 20 मिनट्स पर एवरी 1 आवर। सो इसका मतलब अगर 3 घंटे बाकी सबके लिए हैं, तो जो पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 1 आवर एक्स्ट्रा मिलता है, उनको 4 घंटे मिल जाते हैं। So these things are there, and UPSC is very much sensitive about the PH category students. So I think he doesn't need to worry, and according to उनका किस category में आता है, तो he can apply for scribe also. ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू अभिषेक इस आंसर के लिए। आई थिंक अंकित इज अ वेरी वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट, बहुत सवाल भी पूछते हैं, एंड ही इज बी पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट। अच्छा, दूसरा एक स्टूडेंट है, शी इज जस्ट 18 years old एंड शी इज जस्ट इन ग्रेजुएशन, शी इज वन ऑफ माय स्टूडेंट। तो इनका बहुत बेसिक सवाल है कि ग्रेजुएशन की में कितना घंटे का पढ़ाई करना चाहिए एवरेज पर डे के हिसाब से? मैंने तो ग्रेजुएशन में नहीं, मैंने बाद में ही तैयारी शुरू की थी, तो वो तो मैं नहीं कह सकूंगा, और डिपेंडिंग वो किस किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बट आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 6 घंटे पढ़ना शुरू कर दें अभी यूपीएससी के लिए। जो ग्रेजुएशन करें उनके लिए मैं सबसे पहला काम तो करूँगा कि आप इंडियन एक्सप्रेस, मैं इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर करता हूँ, वरना हिंदू भी ले सकते हैं जो हिंदू लेते हैं, दोनों में से कोई एक पेपर वो आप ज़रूर लगवा लो अपने कॉलेज में, हॉस्टल में, जहाँ भी रह रहे हो। और डेली जो है एडिटोरियल पेज, वर्ल्ड वाला पेज, इकोनॉमी वाला पेज और फ्रंट पेज, और एक्सप्लेन, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन वाला पेज बहुत अच्छा होता है। तो ये 4-5 पेज जो हैं डेली आप जरूर पढ़ो, गिव एटलीस्ट 1 to 1.5 hour टू न्यूज़पेपर। और बेसिक बुक्स आपको पता है, लक्ष्मीकांत वगैरह ये वो, उनकी आप कैजुअल रीडिंग स्टार्ट कर दो बिना किसी दिमाग पे प्रेशर लिए, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ टाइम। सो जस्ट स्टार्ट विद द कैजुअल रीडिंग ऑफ दैट एंड न्यूज़पेपर डेली रीडिंग। अगर आपने 1 साल रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ लिया, एडिटोरियल पढ़ लिए, तो आपको इंडिया के, वर्ल्ड के बेसिक इश्यूज पे ऑटोमेटिकली ग्रास्प आना शुरू हो जाएगा। एंड सप्लीमेंट देम विद द बेसिक बुक्स, नो नीड टू गो फॉर वेरी, मतलब कुछ हाई फाई जाने की जरूरत नहीं है, अपना ऑप्शनल का थोड़ा बहुत देख सकते हो, बट स्टार्ट विद वेरी बेसिक थिंग्स। ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन है, देन विल क्लोज फॉर द डे। व्हाट इज योर करंट अफेयर स्ट्रेटजी? आपका करंट अफेयर स्ट्रेटजी अभी का क्या है, ये पूछ रहे हैं। अभी ओके सी सर, अगर मैं इंस्टीट्यूट का नाम ले सकता हूँ, तो मैं विजन के पीटी 365 में पढ़ता हूँ,
और मैंने वो फॉलो किए हैं एंड आई गेस काफ़ी स्टूडेंट्स वो फॉलो करते हैं। सो विजन के मंथली करंट अफेयर मैं पहले देख लेता था, बट टाइम नहीं है मेरे पास उतना, तो मैं PT 365 करंट अफेयर्स के लिए पढ़ रहा हूँ, दैट्स इट। So I hope Ajit you got it. Basically, see, try to understand Ajit. Once आप जब 6-8 महीने आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हो तो आपका एक बेसिक थ्रेशोल्ड डेवलप हो जाता है इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड यू डोंट हैव टू, डेली नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी चलता है, आप किसी एक अच्छे सोर्स को उठा के आप वहां से फिल्टर कर सकते हो, चलते फिरते न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कोई आर्टिकल पढ़ लिया, तो अंडरस्टैंडिंग इतनी लूसिड हो जाती है, आपका बेसिक कमांड डेवलप हो जाता है दैट यू डोंट टू हैव टू गो विद द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड रीडिंग एंड मेकिंग नोट्स एवरी डे। तो स्टार्टिंग का 6-8 महीना इंपॉर्टेंट होता है, बट उसके बाद आप एक फ्लेक्सिबल अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो, दैट विल आल्सो वर्क। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच अभिषेक फॉर योर टाइम। ये जो इनसाइट है, इनफैक्ट दिस इज बहुत सारे टॉपर्स टॉक हुए अभी तक, उसमें से आपने कुछ अच्छे इनसाइट दिए, इनफैक्ट मेरे लिए भी लर्निंग था, स्पेशली दैट 5000 वाले क्वेश्चन, कभी मैं उस लेवल पे मैं सोचा नहीं था। मैं हमेशा बच्चों को एडवाइस करता था एटलीस्ट 20-25 पेपर्स आप लगाओ, बट आपने 50 बोला, तो मे बी नेक्स्ट टाइम मैं बच्चों को और पुश करूंगा दैट दे शुड अटेंड मोर। एंड ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन अप्रोच इज वेरी वर्कफुल, कि आप बैकवर्ड जाके आप लर्न करने की कोशिश करते हो एंड डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट इज बिकॉज जब आप 5000 क्वेश्चन लगाते हो तो ऑटोमेटिकली आप यूपीएस सिलेबस का काफी थरो एरियाज, कोना कोना जो है कवर हो जाता है उसमें। सो दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच स्पेशली फॉर द एस्पिरेंट्स, एंड thank you very much. And anything for last word for students, if you have, just tell them, and maybe we'll close the day. सर लास्ट वर्ड वही रहेगा कि वर्क हार्ड एंड यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो उसी मेंटेलिटी के साथ अपना जी जान लगा दें एग्ज़ाम में, और जो गलतियां मैंने की थी आई होप मैंने कुछ कुछ उसका बता दिया कि वो ना करें। दैट इज़, जो बिगिनर्स हैं दे हैव दैट अर्ली स्टार्टर्स एडवांटेज, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं ताकि आप पहली दूसरी अटेम्प्ट में ही जो है वो आप लबासना मसूरी पहुंच जाएं। सो वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। Okay, so thank you very much, Abhishek, for your time, and I hope you do well this time, and maybe better rank, maybe IAS and IPS. That's eventually the objective. And let's keep up the good work for everybody. And thank you very much. Thank you, sir. I'll close for the day. Yes.